Hello, good morning all. My name is Harveen Kohli and I'm taking care of CDE College, which is located in Sherbrooke City. Province is Quebec and country is Canada. Today I'm live on RENA Overseas Facebook page to meet you all and to discuss few things about COVID-19 situation, about Canada, about the province where we are located, that is Quebec, and the place where we are located, that is Sherbrooke City, and lastly my college information like programs, requirements, why you should come to CDE College, what are the benefits. So all those things will be covered in today's session. So I would like to thank you, RENA Overseas, again for giving me an opportunity to interact with you all and to guide you with few questions which you have in your mind. I'm sure you are aware about Canada, and you mostly students have decided to come to Canada. But then if some students are confused between the countries, so would be covering all those points in this session. And in this session, after this session, I would be addressing your questions also. So if you have any questions, you can just write it down in the comment box, and after the session I personally will answer those questions. So we'll wait for 2 seconds and we'll start the session, so that if few more people wants to join in, we can just wait for them and then we'll start the session. Yeah, so I think we should start the session. We have got few people now. So let me introduce myself once again to the students and for the people who have joined recently. My name is Harveen Kohli and I'm taking care of CDE College, which is located in Sherbrooke City. The province is Quebec and the country is Canada. In today's session, I would be covering all the major points which students have the doubts regarding Canada, regarding Quebec, regarding CDE College, and what are the benefits if you are choosing specific country, Canada, and what are the benefits if you are coming to Quebec as well as to my college, that is CDE College. Right? So one delay and we'll start the session now. So for Canada, if we talk, like mostly you people are aware why you should choose Canada. So there are 4 major points which you should know. One is like with weather, right? The first concern which we students have and parents have is, मैम वहाँ का weather कैसा रहेगा? वहाँ पे सुना है बहुत ज़्यादा ठंडी होती है. Yes, यहाँ पे ठंडी होती है कनाडा में, but then we experience all the 4 seasons. 4 seasons are like fall, winter, summer and spring. All the 4 season is experienced in Canada. So ऐसा नहीं है कि सिर्फ ठंडी रहती है कनाडा में. कनाडा चारों सीजन experience करता है, but yes, mostly it is winter, like it's cold, but then we experience all the 4 seasons. तो इतना भी ठंडा नहीं है. We Indian students and Indian people can gel up with the weather. Now second point is your education. So quality of education is the best in Canada, all right? The weightage of your document, if you are completing your diploma, if you are completing your studies in Canada, then the degree or the diploma which you are carrying will be having more weightage because it will be an international degree. Secondly, if we talk about the fees, then if we compare to other countries like UK, Australia, New Zealand, देन हमारी जो फीस है वो बहुत रीजनेबल है. तो कनाडा में आपको बेस्ट एजुकेशन मिलेगा बट प्लस रीजनेबल मिलेगा. सो दैट इज़ वाई मोर स्टूडेंट्स आर चूजिंग कनाडा. नाउ थर्ड पॉइंट इज़ जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं पेरेंट्स के रिगार्डिंग सिक्योरिटी. अब मेरा बच्चा अगर जा रहा है तो वो सिक्योर रहेगा कि नहीं, वहाँ पे क्राइम रेशियो क्या है. तो अगर हम इन सब चीज़ों की बात करें तो कनाडा में जो क्राइम रेशियो है बहुत कम है. So your regarding your security and your lifestyle is the best as compared to other countries. Last point is the best point of the students and parents who are looking for the settlement. So yes, Canada is the best country to get settlement. और इसके जो क्या बोलते हैं, तो जो settlement के जो options हैं, that is very much easy. तो student after completion of the program to get the PR is very easy in Canada. तो अगर आप सोच रहे हो सेटलमेंट के लिए, देन कनाडा इज़ द बेस्ट कंट्री.
सो ये थी बातें आपकी कनाडा की। अब बात करते हैं क्यूबेक की। तो अगर मैं क्यूबेक की बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट आपके दिमाग में आता है दैट इज़ फ्रेंच, क्यूबेक इक्विवेलेंस टू फ्रेंच। तो ऐसा नहीं है, पार्शली येस इट इज़ राइट, बिकॉज जो क्यूबेक है यहाँ की जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो है फ्रेंच और जो दूसरी लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। जबकि अगर मैं कनाडा की बात करूँ तो कनाडा में फर्स्ट लैंग्वेज इज़ इंग्लिश एंड सेकेंड इज़ फ्रेंच। तो यहाँ पे जो सबसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्यूबेक में ही फ्रेंच बोली जाती है, पूरे कनाडा में फ्रेंच बोली जाती है, बट येस सबसे ज़्यादा जो फ्रेंच बोली जाती है, फ्रेंच पीपल जहाँ पे आप पाएंगे वो है क्यूबेक। अब ये जो फ्रेंच प्रोग्राम है, ठीक है, अब कई बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि मैम मुझे फ्रेंच नहीं आती है, वहाँ पे जाके फ्रेंच सीखनी पड़ेगी, अगर फ्रेंच नहीं आएगी तो मैं कैसे जाऊँगा? तो ऐसा नहीं है, फ्रेंच इज़ नॉट कंपलसरी। अगर कंपलसरी होती तो हम आपको इंडिया से ही बोलते कि आपको कोई लेवल कंप्लीट करके आप आ सकते हैं, बट हमें आपका आइल्स स्कोर ही चाहिए जो कि हम आपको वहाँ पे एडमिशन दे पाएंगे। ठीक है, तो आपकी जो क्लासेस होंगी वो इंग्लिश में होंगी। पार्ट टाइम जॉब के लिए आपको फ्रेंच की ज़रूरत नहीं है, फुल टाइम जॉब के लिए आपको फ्रेंच की ज़रूरत नहीं है। बट अब मैं जो बात कहने जा रही हूँ आप खुद ही बोलोगे कि मुझे फ्रेंच सीखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रेंच सिखा रही है। आपने सुना होगा कि 100% स्कॉलरशिप है, ठीक है, इंडिया में भी 100% स्कॉलरशिप होती है, बट ये सुना है कि 100% स्कॉलरशिप के साथ आपको वो पैसे दे रहे हैं टू लर्न द लैंग्वेज और टू लर्न द सब्जेक्ट विच यू आर गिविंग, दे आर गिविंग 100% स्कॉलरशिप। नहीं ना, मैंने तो नहीं सुना एक्चुअली कहीं कोई भी कंट्री में कि वो 100% स्कॉलरशिप दे रहे हैं, प्लस ऊपर से दे आर पेइंग टू मेक यू लर्न समथिंग। बट ये जो गवर्नमेंट है, क्यूबेक की गवर्नमेंट, वो क्या कर रही हैं, अभी फ्रेंच प्रोग्राम को दे आर प्रमोटिंग। तो वो जो फ्रेंच प्रोग्राम है दे आर गिविंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट, सो यू आर नॉट पेइंग अ सिंगल पेनी to learn this new language. However, the government would be paying you $820 to learn this language. अब फ्रेंच सीखने के फ़ायदे क्या हैं? एक तो फ़ायदा ये है कि आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। अगर मुझे 2 लैंग्वेज, अगर इंडिया में भी अगर मैं बात करूं, अगर मुझे मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हैं तो मेरे रेज्यूमे की जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा हो गई। दूसरा, गवर्नमेंट सेक्टर जॉब विल बी ओपन फॉर यू, बिकॉज जैसे मैं बताया कि क्यूबेक में फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो है फ्रेंच और दूसरा इंग्लिश है, और जो कनाडा की अगर मैं बात करूं तो कनाडा में फर्स्ट इंग्लिश है और दूसरा फ्रेंच है। तो अगर आपको वहाँ की फर्स्ट लैंग्वेज आती है तो गवर्नमेंट सेक्टर जॉब ओपन हो जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको इंडिया में गवर्नमेंट सेक्टर जॉब चाहिए तो आपको हिंदी आना ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ आवर फर्स्ट लैंग्वेज। सेम वे अगर आपको क्यूबेक में गवर्नमेंट सेक्टर जॉब चाहिए तो फ्रेंच आना ज़रूरी है। So again I would say French is not compulsory. However, if you get enrolled with French program, then the benefits are different and are the best benefits. एक तो आपको $820 मिल रहे हैं सीखने के, दूसरा आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, थर्ड कि आपकी गवर्नमेंट सेक्टर जॉब ओपन हो जाती है, और लास्टली पीआर। अगर आपको फ्रेंच आता है क्यूबेक में तो सेटलमेंट के ऑप्शन बहुत जल्दी आपको पीआर मिल जाएगा और इन अ ईजियर वे। जो पीआर का पार्ट है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी सेशन के, ताकि यू विल गेट इन फुल आइडिया व्हाई यू शुड लर्न फ्रेंच एंड गेट इन टू द क्यूबेक का पीआर कैसे मिल सकता है। ठीक है, तो ये बात रही आपकी फ्रेंच की। अब क्यूबेक के सिर्फ फ्रेंच नहीं है, क्यूबेक में क्यूबेक के और भी फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे हैं? एक तो ये कि क्यूबेक सबसे पुराना और सबसे बिगेस्ट प्रोविंस है। अगर आपको पता है कनाडा का, तो कनाडा इज़ डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, सस्केचुआन, मैनिटोबा, ओंटारियो एंड क्यूबेक। अब जो क्यूबेक है वो सबसे ओल्डेस्ट प्रोविंस है और सबसे बिगेस्ट प्रोविंस है, अगर आपने मैप देखा हो तो। दूसरी बात कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं इन द नॉर्दर्न साइड, प्लस हमारे पास खुद का पोर्ट है, मॉन्ट्रियल पोर्ट। अब मैं पोर्ट के ऊपर इतना क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज जो कनाडा है वो कोल्ड कंट्री है, इसके पास खुद का प्रोडक्शन नहीं है, तो हमें सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है। तो जो भी इंपोर्ट आता है वो वाया सी रूट से आता है। तो देर आर 2 पोर्ट्स, वन इज वैंकूवर विच इज़ इन ब्रिटिश कोलंबिया एंड द अदर वन इज मॉन्ट्रियल विच इज़ इन क्यूबेक। जो क्यूबेक का जो पोर्ट है वो सबसे ओल्डेस्ट सी रूट है, तो इसलिए हमारे पास क्यूबेक का पोर्ट है, सॉरी मॉन्ट्रियल पोर्ट है, प्लस नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं? एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिल जाती है, अगर खुद का पोर्ट है तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी। दूसरा कि आपका जो लिविंग एक्सपेंस है,
मेरे को अपने पोर्ट यूज़ करने के लिए मैं टैक्स पे नहीं करती, बट जो दूसरे प्रोविंसेस हैं वो टैक्स पे करते हैं टू यूज़ आर पोर्ट. तो अगर मैं लिविंग एक्सपेंस की भी बात करूँ तो इट इज़ हाफ ऑफ व्हाट आई विल बी पेइंग इन अदर प्रोविंसेस. तो ये दो चीज़ें जो है वो बहुत मेजर हैं. एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई स्टडीज़ विल आई गेट माई जॉब और नॉट. तो क्यूबेक इज़ द बेस्ट पार्ट. वहाँ पे अभी 20,000 प्लस जॉब्स अवेलेबल हैं. और दूसरी बात कि लिविंग एक्सपेंस, एंड ऑफ द डे GIC अकाउंट में से आपको $675 मिलेंगे, जिसमें से आपको तीनों खर्चे करने हैं. 3 मेजर खर्चे क्या हैं? एक तो आपका रेंट, मतलब आपका अकोमोडेशन. दूसरा आपका फूड, दैट मीन्स ग्रॉसरीज जो आप मंथली राशन लेके आओगे. थर्डली ट्रांसपोर्टेशन. ये आपके जो 3 एक्सपेंसेस हैं ये आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते. तो ये तीनों की अगर मैं बात करूँ तो क्यूबेक बहुत ही लेस एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस. अब हमने ये बात छेड़ी है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की और लिविंग एक्सपेंस की, तो मैं ये एक्सप्लेन कर दूं कि अगर हम लिविंग एक्सपेंस की बात करें तो जैसे मैंने मोस्टली स्टूडेंट्स को देखा है, दे हैव दिस थिंग दैट दे वांट टू गो टू टोरंटो ओंटारियो. तो विल बी कंपेयरिंग विद टोरंटो ओंटारियो एंड क्यूबेक. तो जैसे मैंने बताया कि 3 मेजर एक्सपेंस होंगे, रेंट, फूड एंड योर ट्रांसपोर्टेशन. So if I have to get 2 BHK apartment in Toronto, it will cost me around about $1,800 to $2,000. I will share with other 3 students in one apartment, 4 students. So per student will be paying approximately $450 to $500. Same way if I talk about Quebec, तो Quebec में मुझे 2 BHK अपार्टमेंट $800 का मिलेगा. मैं अलग 3 और लोगों के साथ अगर शेयर करती हूँ तो पर पर्सन विल बी पेइंग $200. बात करें आपकी ग्रॉसरीज की, जो राशन में आपका कंट्रीब्यूशन होगा वो टोरंटो में रहेगा अराउंड अबाउट $60 to $70, जबकि वही चीज़ क्यूबेक में $35 to $40 की रहेगी. ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन अगर टोरंटो में देखने जाएं, हमें अगर बस पास चाहिए तो इट विल बी अराउंड अबाउट $130, और अगर क्यूबेक की बात करें तो इट विल बी अराउंड अबाउट $55. तो अगर हम लमसम अमाउंट देखने जाएं तो टोरंटो में होगा अराउंड अबाउट 600 to 700 योर एक्सपेंस विल बी देयर. इफ वी कंपेयर इट विद क्यूबेक देन इट विल बी $300 to $400. दिस इज लाइक हाफ ऑफ व्हाट यूल बी सेविंग इफ यू आर कमिंग टू क्यूबेक, राइट. सो दिस इज वन थिंग. और ये अगर आपके में क्वेश्चन आएगा कि ये इतना लेस एक्सपेंसिव कैसे है, इतना सस्ता कैसे है, तो जैसे मैं बताया कि हमारे पास खुद का पोर्ट है तो हम टैक्सेस नहीं पे करते हमारे पोर्ट को यूज़ करने के लिए, बल्कि दूसरे पे टैक्सेस करते हैं. तो इसकी वजह से हम लेस एक्सपेंसिव हैं एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस. अगर आपको ऐसा लगता है कि वी आर डेवलपिंग, नहीं, वी आर नॉट डेवलपिंग प्रोविंस, वी आर ऑलरेडी डेवलप्ड प्रोविंस. तो इसलिए हमारा ये ऐसा नहीं है कि हम किसी से कम हैं, बट येस पोर्ट की वजह से हमारा लेस एक्सपेंसिव है. अब अगर बात करें आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे हमारे पास खुद का पोर्ट है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं. प्लस जो क्यूबेक है वो IT हब कहलाता है. अगर आप IT स्टूडेंट हैं तो इट इज़ नोन एज एन IT हब क्यूबेक का, ठीक है. और दूसरी बात, यहाँ पे जो आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पे 20,000 प्लस जॉब्स अवेलेबल हैं. क्यों? बिकॉज यहाँ पे 35% ऑफ द जनरेशन इज गेटिंग रिटायर्ड. दे आर कमिंग इन टू 60 to 65 एज स्लैम. So we have company but we don't have manpower, and that's the reason why government is promoting French, so that you can learn French and can join the government sector job as well as you can join the companies, right? So ये 2 फायदे हैं. दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप क्यूबेक में आते हैं, अब कई प्रोविंसेस में ऐसा होता है कि आपको अपनी खुद की फील्ड में जॉब करनी है या फिर मैनेजरल पोजीशन पे जॉब करनी है, तभी आपके PR के पॉइंट्स ऐड होंगे. जबकि क्यूबेक में ऐसा है कि आप अपना कहीं पे भी जॉब करो, मैनेजर पोजीशन, कोई भी पोजीशन पे जॉब करो, यू विल गेट द PR पॉइंट्स. सिर्फ एक कंडीशन है कि आपकी जो जॉब होनी चाहिए वो फुल टाइम जॉब होनी चाहिए, पार्ट टाइम जॉब नहीं होनी चाहिए, ठीक है. तो ये 2 पॉइंट्स थे आपके जो मुझे डिस्कस करने थे, जो एक स्टूडेंट को और उसके पेरेंट्स को क्वेश्चन होता है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और लिविंग एक्सपेंस का. और लास्टली जो पॉइंट है दैट इज़ PR. तो PR का जो पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे क्यूबेक में अगर आप आते हैं तो 20 डेज में यू विल गेट द क्यूबेक PR. हाउ, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन पूरा डिटेल में कि कैसे आपको क्यूबेक PR जल्दी मिल सकता है. अब बात करते हैं शेरब्रुक सिटी की. शेरब्रुक सिटी जहाँ पे हमारा कॉलेज लोकेटेड है, CDE कॉलेज. शेरब्रुक सिटी अगर आपने नाम सुना हो तो इट इज़ जस्ट 1.5 hours ड्राइव फ्रॉम मॉन्ट्रियल, विच इज़ 150 kilometers अवे फ्रॉम मॉन्ट्रियल. सो द नियरेस्ट एयरपोर्ट विल बी मॉन्ट्रियल.
अब जो शेरब्रुक है वो एक वेकेशन डेस्टिनी की तरह जाना जाता है. वो पूरा हिली एरिया से ढका हुआ है. इट्स एन ऑसम प्लेस टू दे एंजॉय विंटर्स समर्स. यहाँ पे वेकेशन करने के लिए बहुत लोग आते हैं. तो यहाँ पे होटल्स रेस्टोरेंट्स बहुत सारे हैं. दूसरी बात ये कि जो कॉलेज है ये डाउनटाउन में सिचुएटेड है. तो आजू बाजू बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, ऑफिसेज हैं. तो इट्स लाइक अ हैपनिंग प्लेस. प्लस अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो जो बस स्टैंड है दैट इज़ जस्ट 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द कॉलेज. तो अगर आपको सैटरडे संडे वीकेंड पे मॉन्ट्रियल जाना है तो इट्स जस्ट अ 5 मिनट्स वॉक. यू कैन जस्ट वॉक डाउन एंड यू कैन गेट योर बस. तो ट्रांसपोर्टेशन की भी अगर बात करें तो इट इज़ द बेस्टेस्ट एंड द नियरेस्ट वन. सो ये फ़ायदे हैं शेरब्रुक. मतलब शेरब्रुक के फ़ायदे मतलब कि दिस इज़ हाउ शेरब्रुक लुक्स लाइक. और जब आप आएंगे आप खुद ही एक्सपीरियंस करेंगे. तो जब आपका ओरिएंटेशन होगा तब हम आपको पूरी सिटी में लेके जाएंगे, आपको सब कुछ बताएंगे. सो आई एम श्योर यू विल एन्जॉय शेरब्रुक सिटी. इफ़ यू लव नेचर देन शेरब्रुक इज़ द प्लेस, राइट. अब बात करते हैं CDE कॉलेज की. तो CDE कॉलेज जो है, दिस कॉलेज इज़ लोकेटेड इन शेरब्रुक सिटी and we are offering total 5 programs related to business and IT for both undergrad and postgrad. तो हम अगर अंडरग्रेड की बात करें तो हमारे पास जो प्रोग्राम है वो है बिजनेस मैनेजमेंट, ऑफिस सिस्टम टेक्नोलॉजी, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन. अगर बिजनेस मैनेजमेंट की बात करें तो अगर आपने 12th कॉमर्स किया है तो बिजनेस मैनेजमेंट आपके लिए सही प्रोग्राम है. अगर आपने 12th साइंस विद मैथ्स किया है तो या तो आप ऑफिस सिस्टम टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं. थर्ड पॉइंट कि अगर आपने आर्ट्स विद मैथ्स किया है तो इवन यू कैन गो फॉर ऑफिस सिस्टम टेक्नोलॉजी. सो टोटल 3 प्रोग्राम्स हैं अंडरग्रेड के: बिजनेस मैनेजमेंट, ऑफिस सिस्टम टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन. अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेड की. तो पोस्ट ग्रेड में हमारे पास हैं अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड प्रोग्रामर एनालिस्ट वेब डेवलपमेंट एप्लीकेशन. अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट जो प्रोग्राम है वो स्टूडेंट्स जिसने BCom किया है, MCom किया है, MBA किया है, BBA किया है, ये स्टूडेंट्स ऑप्ट कर सकते हैं अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट के लिए. दूसरा प्रोग्राम है दैट इज़ प्रोग्रामर एनालिस्ट वेब डेवलपमेंट एप्लीकेशन. इसमें इट्स एन IT प्रोग्राम. तो स्टूडेंट्स जिसने BCA किया है, MCA किया है, BSc in IT किया है, BSc in कंप्यूटर साइंस किया है, दे कैन ऑप्ट फॉर प्रोग्रामर एनालिस्ट वेब डेवलपमेंट एप्लीकेशन. सो टोटल देर आर 5 प्रोग्राम्स बोथ UG एंड PG फॉर बिजनेस एंड IT. एक बार मैं वापस से बता दूं, बिजनेस मैनेजमेंट, ऑफिस सिस्टम टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन आर अंडरग्रेड प्रोग्राम्स. अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट एंड प्रोग्रामर एनालिस्ट वेब डेवलपमेंट इज अ पोस्ट ग्रेजुएशन PG डिप्लोमा प्रोग्राम्स. अब जो सब प्रोग्राम्स हैं वो आते हैं 10 वीक्स के इंटर्नशिप के साथ. दैट मीन्स लास्ट के जो 3 मंथ्स होंगे 2 ईयर्स के, वो आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी, जहाँ पे आप एक कंपनी में जाओगे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करोगे. एंड ऑफ द डे यू विल बी गेटिंग द सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंपनी स्टेटिंग दैट यू हैव कंप्लीटेड योर इंटर्नशिप सक्सेसफुली. So you are no longer a fresher. You already have 3 months of experience with you before leaving your campus. Like studies करने से पहले, मतलब आपको जब डिप्लोमा मिलेगा उससे पहले आपके पास 3 महीने का एक्सपीरियंस होगा. तो इट विल बी काउंटेड एज एन एक्सपीरियंस. सेकेंड बात ये रही कि अगर आप अच्छे इंटर्न हो तो कंपनी में ऑफर यू जॉब इन देयर ओन कंपनी. सो इफ यू थिंक दैट द कंपनी इज गुड, द पैकेज दे आर ऑफरिंग इज गुड, यू कैन टेक दैट ऑफर. अदरवाइज डिफरेंट कंपनीज कम फॉर द जॉब प्लेसमेंट्स. जॉब प्लेसमेंट्स का फेयर होता है हमारा हर एक साल. आप वहाँ पे बैठो, इंटरव्यू दो एंड यू कैन गेट द ऑफर लेटर. So it's not like we will just make you learn and we'll give you the diploma certificate. We will be helping you to get the job also. अब बात रही जो कॉमन क्वेश्चन आता है स्टूडेंट से, वो ये आता है कि मैम इट विल बी पेड वन और अनपेड वन. सो पेड और अनपेड डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट प्रोफाइल. अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हो तो पेड में जाओगे, नहीं तो अनपेड में. बट इट विल बी कंपलसरी बिकॉज ये आपके सिलेबस में ही आता है. ऑलराइट, अब बात करते हैं कि ये प्रोग्राम्स का स्ट्रक्चर क्या है. तो ये जो प्रोग्राम है वो है 2 साल के प्रोग्राम. ऑल द प्रोग्राम्स UG PG बोथ. Duration is 2 years, which will come with 3 years of post-study work permit. 3 days you will be having CDE classes and 4 days you are free to do your part-time job or French classes. French classes again जैसे मैंने बताया कि अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप French classes ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको $820 मिलेंगे. प्लस वो आपको चारों मॉड्यूल्स पढ़ाएंगे, A1, A2, B1, B2, all the 4 levels. And the best part of this thing is कि जैसे IELTS में 4 मॉड्यूल्स के एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, आपका लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग,
एंड स्पीकिंग, राइट। बट यहाँ पे आपके जो एग्जाम्स होंगे वो सिर्फ ओरल होंगे। दैट मीन्स आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए और बोलनी आनी चाहिए। तो आपके जो एग्जाम होंगे वो सिर्फ लिसनिंग और स्पीकिंग में होंगे। तो और एंड ऑफ द डे द गवर्नमेंट विल बी गिविंग यू दिस सर्टिफिकेट। सिर्फ एक कंडीशन है कि ये फुल टाइम प्रोग्राम है, तो 25 आवर्स पर वीक आपको ये क्लास अटेंड करनी है, फ्रेंच क्लासेस, तभी यू विल बी गेटिंग $820, ठीक है। और मतलब 25 आवर्स मतलब 3 दिन आपकी फुल टाइम क्लासेस होंगी फ्रेंच की, 3 डेज आपकी फुल टाइम क्लासेस होंगी CDE की। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का कि मैम अगर मैं फ्रेंच कर रहा हूँ तो मैं साथ में पार्ट टाइम जॉब कर सकता हूँ कि नहीं, राइट। तो legally you can do both the things. You can do French classes as well as you can do part-time job. But end of the day it would be too hectic for you. But अगर आप करना चाहो तो दोनों कर सकते हो. There will be no restrictions. ठीक है, तो फ्रेंच के साथ आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। अब आते हैं रिक्वायरमेंट्स पे। तो अंडर ग्रेड के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, IELTS स्कोर जो हम चाहते हैं दैट इज 6 बैंड्स ओवरऑल, नॉट लेस देन 5.5 इन 1 मॉड्यूल। ये अंडर ग्रेड का है, 6 बैंड्स ओवरऑल, नॉट लेस देन 5.5 इन 1 मॉड्यूल। एंड फॉर पोस्ट ग्रेड either 6 each, not less than 6, or 6.5 bands overall, not less than 5.5 in 1 module. दोनों में से कुछ भी पोस्ट ग्रेड में आ रहा है तो इट्स ओके। 6 bands overall, not less than 6, और 6.5 bands overall, not less than 5.5 in 1 module, right? Undergrad के लिए 6 bands overall, not less than 5.5 in 1 module. Percentage which we are looking for is 55%. So जो भी आपका लास्ट एकेडमिक है उसमें 55% आना ज़रूरी है। तो अगर आप अंडर ग्रेड के लिए जा रहे हो तो ग्रेड 12th में यू शुड हैव 55%, और अगर आप पोस्ट ग्रेड के लिए जा रहे हो तो आपका बैचलर्स में या फिर आपने मास्टर्स किए हैं या कोई भी डिप्लोमा किया है बैचलर्स के बाद तो उसमें 55% होने चाहिए। अब बात करते हैं आपके बैकलॉग्स की। तो बैकलॉग्स की अगर बात करें तो अगर 4 साल का प्रोग्राम आपने किया है, बैचलर्स ऑफ 4 years, लाइक कोई इंजीनियरिंग प्रोग्राम किया है, BSc in IT और BSc in कंप्यूटर साइंस, तो वो 4 years का प्रोग्राम होता है। तो वी आर एक्सेप्टिंग अप टू 8 बैकलॉग्स। और अगर आपने BCA किया है या BCom किया है जो कि 3 साल के प्रोग्राम होते हैं तो वी आर एक्सेप्टिंग अप टू 6 बैकलॉग्स। येस, वी आर एक्सेप्टिंग गैप ऑल्सो। अगर आपका ग्रेजुएशन के बाद 5 साल का गैप है दैट इज़ परफेक्टली फाइन, बट 5 साल का जो गैप है वो आपको अपने रेलिवेंट एक्सपीरियंस में दिखाना है या फिर रेलिवेंट एजुकेशन में दिखाना है। दैट मीन्स कि अगर मैंने IT किया है तो मेरा जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो IT फील्ड में होना चाहिए या फिर जो मेरी स्टडीज़ हैं वो IT फील्ड में होनी चाहिए। आई कांट चेंज माई फील्ड, ठीक है। तो ये 5 साल का जो गैप है दैट इज़ एक्सेप्टेबल। दूसरा 12th के बाद 2 साल का गैप एक्सेप्टेबल है। सो दोज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ CDE कॉलेज, इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। और अगर बात करें अब बेनिफिट्स की कि अगर आप CDE कॉलेज आ रहे हो तो वाई यू शुड कम टू CDE कॉलेज, व्हाट आर द बेनिफिट्स इफ यू आर कमिंग टू CDE कॉलेज। फर्स्टली एजुकेशन इज द बेस्ट। सेकेंडली व्हाट वी आर गिविंग 14 days ऑफ सेल्फ आइसोलेशन। सेल्फ आइसोलेशन मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज अभी जब कोविड-19 सिचुएशन चल रहा है, अभी एवरीथिंग इज लॉकडाउन, बट जैसे ही खुलेगा इंटरनेशनल बॉर्डर्स विल बी ओपन, तो जब आप वहाँ जाएंगे तो भी जो कैनेडियन गवर्नमेंट है दैट इज दिस कैनेडियन गवर्नमेंट विल बी स्ट्रिक्ट। वो आपको बोलेंगे कि 14 days का सेल्फ आइसोलेशन करना ज़रूरी है। अब जो 14 days का सेल्फ आइसोलेशन है वो हम आपको दे रहे हैं, हम आपको अलग से एक रूम में रखेंगे, दैट विल बी सेल्फ आइसोलेटेड। तो वो 14 days का जो सेल्फ आइसोलेशन है कोविड-19 के बाद दैट विल बी गिवन बाय अस। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अपने एयरपोर्ट पे बोल दिया कि येस आई एम गोइंग देयर, आई विल बी सेल्फ आइसोलेटेड। देयर कैन बी अ क्रॉस चेक कि वेदर यू आर अंडर सेल्फ आइसोलेशन और नॉट, तो दैट विल बी गिवन बाय अस। इसके साथ साथ आपको 2 months का फ्री अकोमोडेशन दिया जाएगा, मीन्स 14 days ऑफ सेल्फ आइसोलेशन प्लस 2 months का फ्री अकोमोडेशन। Third and the best part is we will be giving you free airport pickup from Montreal to Sherbrooke city. So we know that as you are coming to a new country or a new city, you will be nervous. तो कंफर्टेबल करने के लिए हम आपको सीधे एयरपोर्ट से रिसीव करेंगे, आपको शेरब्रुक सिटी लेके जाएंगे जहाँ पे आपका आइसोलेशन 14 days का रेडी रहेगा। वो 14 days आइसोलेशन कंप्लीट करने के बाद आपको हम वापस से हमारे कैंपस का जो हमारा जो कॉलेज का अकोमोडेशन है वो 2 months का, वहाँ पे हम आपको लेके आएंगे। और ये जो ये जो अकोमोडेशन रहेगा
जो 2 महीने के लिए हम दे रहे हैं, दैट विल बी अ 2 BHK अपार्टमेंट. यू विल बी शेयरिंग विद वन ऑफ योर कोर्समेट. सो इन 1 room 2 students, in 1 apartment 4. All the rooms will be attached with washroom plus common kitchen would be there with induction and refrigerator. So basic amenities सब कुछ दिया जाएगा. So you can just come, you can buy your groceries and you can just start living there. And ये जो accommodation है, that will be off campus, but it will be nearby. It is under the 5 kilometers radius के अंदर ही आएगा. I'm so sorry. Right? So ये जो 3 चीज़ें हैं ये हम आपको दे रहे हैं. एक तो 14 days का सेल्फ आइसोलेशन प्लस 2 months का फ्री अकोमोडेशन एंड प्लस आपको फ्री एयरपोर्ट पिकअप दिया जाएगा फ्रॉम मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट टू शेरब्रुक सिटी. ये चीज़ आप जब भी कनाडा आएंगे तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं. ठीक है, ये बात हो गई आपके कनाडा CDE कॉलेज की बेनिफिट्स की. अब बात करते हैं कि फीस क्या है. तो जो हमारी फीस है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली फॉर 2 years इट्स $29,000 विच इंक्लूड्स योर एवरीथिंग, योर इंश्योरेंस, योर बुक्स, एवरीथिंग विल बी इंक्लूसिव इन दैट. ये था CDE कॉलेज के लिए. अब मैं अगर वापस से एक बार रिफ्रेश करने जाऊँ तो हमने कवर किया है कनाडा, क्यूबेक, शेरब्रुक एंड आवर कॉलेज रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोग्राम्स. अगर बात करें, एक जो पॉइंट बाकी रह गया है दैट इज PR, which is like the best question which I ever get from the student is, ma'am, what about the settlement? अगर मैं PR की बात करूँ तो हर एक प्रोविंस के खुद के PR की पॉलिसीज़ होती हैं, राइट? तो क्यूबेक की बात करें तो क्यूबेक में देर आर 2 ways to get the PR. एक तो है कि अगर आपके पास फ्रेंच नहीं है तो वो जो वे है दैट इज़ 1 year का फुल टाइम एक्सपीरियंस, 1 year का sponsorship from the company where you'll be working. Then you need to give general IELTS in which you need to score 8,777. Then your age will have some points, marital status will have some points. Total points should be 51 points. दूसरा और जो easiest way है that is 1 year of full-time experience plus if you have B2 level of French. You don't need any other document. You will directly apply for the PR. You will get the Quebec PR in just 20 working days. दिस विल बी योर प्रोविंस PR. अगर आप कनाडा जा रहे हैं तो पहले आपको प्रोविंस PR चाहिए होता है, उसके बाद आप फेडरल PR के लिए अप्लाई करते हैं. तो अगर आपका 20 days में आपका क्यूबेक PR आ गया, नाउ यू जस्ट नीड 2 more documents, दैट इज PCC पुलिस क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड मेडिकल. वंस यू सबमिट दोज 3 documents, योर क्यूबेक PR, PCC पुलिस क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड मेडिकल, you will get the federal PR in 12 to 15 months max. Alright? So this is the procedure. अब मैं वापस से आपको बोलना चाहती हूँ, मुझे पता है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स डरते हैं क्यूबेक का. सिर्फ फ्रेंच है उनके दिमाग में कि सिर्फ क्यूबेक जाना है मतलब फ्रेंच आना चाहिए. ऐसा कंपलसरी नहीं है. बट फ्रेंच का फ़ायदा ये है कि अगर आप फ्रेंच सीख रहे हो तो आपको $820 मिल रहे हैं, जिससे आपका पूरा लिविंग एक्सपेंस निकल जाएगा. $820 में भी आप सेव करोगे अगर आप क्यूबेक जा रहे हैं. तो अगर आप पार्ट टाइम जॉब नहीं भी करते हैं और एक लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसका फ़ायदा ये है. दूसरी बात, अगर मैं बात करूं इंडिया में ही, जैसे आई एम पंजाबी, ठीक है, बट मुझे पंजाबी नहीं आती बिकॉज माई बर्थ प्लेस एंड ब्रॉट अप इज़ डन इन गुजरात. तो गुजराती आती है मुझे बट पंजाबी नहीं आती. तो सेम वे अगर आप क्यूबेक में जा रहे हो, आप 1-2 साल वहाँ पे रुक रहे हो, आपका अगर इंटेंशन नहीं भी होगा फ्रेंच सीखने का तो भी आप फ्रेंच सीख जाओगे क्योंकि आपके आजू बाजू जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं. तो धीरे धीरे यू विल स्टार्ट लर्निंग फ्रेंच. तो अगर आप फ्रेंच का एक सर्टिफिकेट ले लेंगे तो वो तो एक तो आपको $820 देगा, प्लस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारा हो जाएंगी. गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स विल बी ओपन फॉर यू एंड एज आई टोल्ड यू दैट इफ यू हैव B2 लेवल ऑफ फ्रेंच यू विल गेट क्यूबेक PR इन जस्ट 20 वर्किंग डेज. प्लस इफ़ बाई चांस गॉड फॉरबिडन अगर आप वापस इंडिया आ भी रहे हैं और अगर आपके पास लैंग्वेज फ्रेंच है, अगर कोई भी फॉरेन लैंग्वेज है, आपके रेज्यूमे का वेटेज बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो इंडिया में भी आके उसका फ़ायदा है. और एक लैंग्वेज, न्यू लैंग्वेज आना इज़ खुद में ही एक अचीवमेंट होती है, राइट? तो ये चीज़ से थी जो मुझे आपको एक्सप्लेन करनी थी कनाडा के बारे में, क्यूबेक के बारे में, मेरे कॉलेज के बारे में. हम लोग अब जो हैं वी आर ओपन फॉर द सितंबर इनटेक एज वेल एज फॉर जैन इनटेक. हम लोग एप्लीकेशन ले रहे हैं. वी नो दैट दिस कोविड-19 सिचुएशन इज़ गोइंग ऑन, बट ये एक टेम्पररी फेज़ है. ये कोविड-19 सिचुएशन जल्दी ख़त्म हो जाएगी एंड एवरीथिंग विल बी नॉर्मल अगेन. तो आई वुड सजेस्ट यू प्लीज़ डोंट स्टॉप ड्रीमिंग. अगर आपकी प्रोफाइल रेडी है, अगर आपका IELTS स्कोर रेडी है, एंड इवन CDE कॉलेज इज एक्सेप्टिंग TOEFL, PTE, Duolingo एग्जाम्स. तो अगर आपका कोई भी स्कोर रेडी है यू कैन फाइल फॉर योर एप्लीकेशन.
आप अपनी साइड से रेडी रहें, एप्लीकेशन कर लें, फीस पेमेंट कर लें, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ले लें. एक बार जब ये लॉकडाउन कंप्लीट हो जाएगा, खुल जाएगा, देन यू कैन स्टार्ट. और अभी तो हाफ इंडिया में भी हाफ लॉकडाउन इज़ ओपन. जो ऑरेंज जोन है और जो ग्रीन जोन है, they are working now. So I would suggest you don't stop dreaming. Please do the needful. Rena Overseas is there who will help you to do your application, will do your process, everything, right? So they are our partner consultant. They will give you the CAQ also. CAQ के बारे में अगर मैं बताऊँ तो जैसे अगर क्यूबेक में आपको एक चीज़, एक और डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, दैट इज़ CAQ. होता क्या है कि जैसे अगर आपने CD कॉलेज के लिए एप्लीकेशन किया, एप्लीकेशन फीस विल बी 0. वी विल बी इशूइंग योर ऑफर लेटर विद इन 2 to 3 वर्किंग डेज. ऑफर लेटर में लिखा होगा कि आपको फर्स्ट ईयर की फ़ीस पे करनी है. आपने एक बार फर्स्ट ईयर की फ़ीस पे की, हम आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस देंगे अगेन 2 से 3 दिन में. लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आने के बाद दूसरे प्रोविंसेस में आप अप्लाई करोगे स्टूडेंट वीज़ा के लिए. बट यहाँ पे आपको एक और डॉक्यूमेंट चाहिए, दैट इज़ CAQ. CAQ का फुल फॉर्म होता है क्यूबेक एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट. It's a government certificate. Without this document, you can't come to Quebec for your further studies. Even जैसे अगर आपका कोई फ्रेंड है जो टोरंटो में है या ब्रिटिश कोलंबिया में है और उसको फर्दर स्टडीज़ के लिए क्यूबेक आना है, तो भी उसको ये CAQ डॉक्यूमेंट चाहिए होगा. तो ये CAQ लेने के बाद, ये जो CAQ है वो 30 to 40 डेज प्रोसेसिंग टाइम लेता है. बट एक बार ये आ गया, मतलब 75% योर वीज़ा प्रोसेस इज डन. यू विल अप्लाई फॉर द स्टूडेंट वीज़ा एंड वीज़ा विल बी ग्रांटेड. तो ये एक सिर्फ प्रोसीजर है. एज अ स्टूडेंट आपका जो रोल रहेगा वो रहेगा सिर्फ एप्लीकेशन करना, अपनी फर्स्ट ईयर की फ़ीस पे करना, बाकी सब कुछ रेना ओवरसीज करके देगा. ऑलराइट, सो दिस इज़ हाउ एप्लीकेशन विल बी डन. एंड एज आई टोल्ड यू दैट वी आर ओपन फॉर September as well as for Jan intake. Please don't stop dreaming. If you have made your mind to come to Canada, then please start doing your application. एटलीस्ट वो तो आप घर पे बैठ के कर सकते हैं. एक बार ये लॉकडाउन कंप्लीट हो जाएगा, देन वीज़ा विल बी अगेन स्टार्टिंग. राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय एंड. एंड रही बात आपके सितंबर इनटेक की, वहाँ पे भी कोई लोग स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होंगे कि मैम अभी जैसे COVID-19 सिचुएशन है, सब कुछ लॉकडाउन है, whether we will be having classes or not. So I would just tell you that we are very much positive that till September everything will be normal. But if by chance 1% भी अगर ऐसा होता है कि लॉकडाउन नहीं कंप्लीट होता है, तो we are ready with the plan B, that is our online classes. जैसे कि मे इनटेक के लिए हम लोग स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, with which will come with 1 month का फ्री ट्रायल. लाइक यू विल बी हैविंग 1 month फ्री ट्रायल टू बी ऑनलाइन, टू गेट द ऑनलाइन क्लासेस. अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो ऑनलाइन क्लासेस में, तो हम आपको डेफरमेंट देंगे, या फिर अगर आप विदड्रॉ करना चाहते हैं तो हम विदड्रॉ भी करवा देंगे. So this is one thing which will be there. But for September intake, we are again saying we are very much positive कि वहाँ तब तक everything will be normal and physical classes will be starting. But 1% भी अगर ऐसा कुछ होता है तो online classes will be given with 1 month of free trial. और अगर आप उसमें comfortable नहीं हो तो हम आपको deferment देंगे for the next intake. अगर आपको withdraw करवाना है तो you can withdraw also. Right? तो ये सब था. अभी ये जो situation चल रही है उसके हिसाब से ये scenario है. But we are very much positive. And I just hope you people will be fine. You are staying at home only. घर पे रहिए, ये लॉकडाउन पीरियड जल्दी ख़त्म हो जाएगा. एंड इफ़ यू हैव डिसाइडेड टू कम टू CDE कॉलेज, देन विल बी सीइंग यू सून एट CDE कॉलेज. Till that time, please take care of yourself and be at home. Again, I would like to thank Rena Overseas, Mr. Ritesh, to give me an opportunity to interact with you all and tell my things from Canada and Quebec and about my college. And we'll be seeing you soon at CDE College. Thank you so much. Thank you.